on the behalf of Trainer Wings, of course, we would like to welcome in our session that is 7QC tools. This topic is no doubt very prominent, I could say, for each and every individual who are really having, such kinds of passion to solve the problems in a scientific ways. Some people, they also talk about this tool as a scientific tool, and no doubt यदि मैं बात करूं इस tool की सबसे खासियत की, this is completely a scientific. यदि इस tool के माध्यम से this tool is not only and only made for guys. This tool is quite, I could say, of course, vital in every department, either HR, either production, either marketing. Each and every department, they may use this vital scientific tool for any problems. Yes, some people, they also do. This is only tools through which actually we can identify the problem only. Yeah, we can do a diagnosis the problem only. Yes, but now how we can solve the problem after diagnosis of the problem? Obviously, diagnosis is the first step, right? Identifying any problem. So whenever, of course, we are going through identifying the root cause of the problem, obviously it will be very, very easier to solve the problem. जब तक हम समस्या की जड़ तो समझ ही नहीं पा सकते, then how is it possible, right, to find solution for, my dear? So thank you so much for attending the session. No doubt, as we have committed, of course, we are bringing such kinds of various kinds of topic for you all, so that enhance your skills and knowledge rapidly through our learning platform, that is Trainer Wings. Ladies and gentlemen, for this topic, once again we have invited a very, very prominent trainer, I could say. He is very passionate. He is very passionate, and he loves to share his experience and knowledge among their aspirant guys, and he is none other than Mr. Vivek Bhardwaj. बहुत ही ये हमारी खुशनसीबी है कि कुछ ऐसे लोगों की सानिध्य का हमें एक अवसर मिला कि उनकी अनुभव को हम उनकी अनुभव से अपने आप को थोड़ा इनहैंस कर सके, एनलाइट महसूस कर सके. So obviously, thank you so much, Mr. Bhardwaj, right, for sharing your ideology on this particular topic today. So it's really, of course, Trainer Wings come again for for delivering your lecture on this vital topic, that is 7QC tools. Yes, so we don't want to waste much more time. I know that, of course, time is quite prominent for you all. So obviously, ladies and gentlemen, just quickly, I'd like to give you the guidelines for this session. Please mute your microphones, right, as well as your camera, so that you could get a better bandwidth. Apart from that, at the end of the session, right, you will get the Q&A part, question and answer के लिए मैं इस सेशन की आखिरी में आपको वक्त मैं दूंगा. And we have personally recommended our trainer कि ये जो सेशन हो, खासतौर पे आप जितने भी इसमें ज्वाइन किए हैं, most of the people they are carrying. So आपको बेसिक आवश्यकता नहीं है, खासतौर पे आप अपने जीवन में, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में, आप अपने जो अनुभव आपको हुआ है, जो चैलेंजेस, चुनौतियां आप अपने आप फेस कर रहे हैं, I request you all, please note down your queries, and at the end of the session, please आप उस क्वेरी को रिजॉल्व करवाइएगा. उस क्वेरी को, उस सवाल को आप ट्रेनर के साथ मुखातिब होकर के आप उस सवाल को पूछिएगा, so that you could get your solutions जो आपके साथ आपकी जो चुनौती हो रहा है. क्योंकि every individual are having certain different challenges in their own organizations. But obviously, if I talk about, of course, in this session, especially in an open house, yes, you are quite lucky, so that I could say an opportunity directly, right, to interact with the trainer to share your own challenge, and you could prompt response for that. So obviously, thank you so much. And meanwhile, if you are getting any difficulty regarding the technical issues, as well as any any doubts, you may write in the chat panel, so that we could take it at the end of the sessions for the same. So thank you so much, Mr. Bhardwaj, once again from the complete Trainer Wings. I'd like to welcome once again on our board and share your auspicious ideology on this particular topic today. Thank you so much. Over to you, Mr. Bhardwaj. Okay, thank you, Irdaji and Trainer Wings sanction. Okay, today we will discuss about the 7QC problem solving tools. It is also called the problem solving tool because basically ये जो tools हैं, ये अगर इंडस्ट्रीज के अंदर किसी भी टाइप की इंडस्ट्रीज है, नॉट ऑटोमोबाइल, अगर कोई भी इंडस्ट्रीज है, तो उसमें जो इश्यूज आते हैं, जो प्रॉब्लम आती हैं, जो गैप आते हैं, उनको हम इसके द्वारा किल कर सकते हैं वन बाय वन. तो आज जो हम बात करेंगे, इसमें
टोटली 7 क्यूसी टूल की बात करेंगे। इसमें हम थोड़ा बेसिक से ऊपर लेके चलेंगे। जो भी हम वर्क करते हैं हमको उसके बारे में पता होना चाहिए कि हमको करना क्या है। अगर सपोज मेरे को आगरा जाना है तो मेरे को पहले टारगेट पता होना चाहिए कि मेरे को आगरा जाना है और कहाँ से मेरे को जाना है। रोड से जाना है, ट्रेन से जाना है या फ्लाइट से जाना है। तो सबसे पहले हमको ये अपना एजेंडा, अपना टारगेट क्लियर होना चाहिए। उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो जो मैं वर्क करूंगा और जो इसमें प्रॉब्लम आएंगी उन प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करूंगा और किस तरह मैं उनको उस गैप को किल करूंगा, प्रॉब्लम को सोल्व करूंगा। तो सोल्व करने के लिए बेसिकली किस तरह मैं अपने जो मेरे प्रोसेस में गैप है उसके रूट कॉज है उसको किस तरह आइडेंटिफाई करूंगा। उस गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए, रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे को डाटा की जरूरत होगी। डाटा मैं किस तरह से मैनेज करूंगा जो मेरे को डाटा जिस फॉर्म में चाहिए उसी फॉर्म में मिल जाए। तो आज इस ट्रेनिंग के दौरान हम ये सारी बातों का जिक्र करेंगे और इन पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आंसर का सेशन हम लास्ट में लेंगे। सबसे पहले व्हाट यू थिंक अबाउट द क्वालिटी। क्वालिटी है क्या? व्हाट इज द क्वालिटी टूल्स? इज देयर रियली वर्क? हाउ एंड वेयर यू यूज इट इफ यू लर्न। अगर हम लर्न करते हैं इसको कहाँ और कैसे यूज कर सकते हैं इसके बारे में हम करेंगे। जो थर्ड है, इज देयर इज रियली वर्क। जब तक हम किसी चीज को प्रैक्टिकली करके नहीं देख लें तो हमको पता नहीं लगता। इसलिए इस ट्रेनिंग सेशन के बाद आप जरूर प्रैक्टिकली कोई भी प्रोजेक्ट लीजिए और उस पर आप वर्क कीजिए सारे टूलों को यूज करते हुए। व्हाट इज द क्वालिटी? क्वालिटी है क्या? थिंक अबाउट द क्वालिटी। जो हम चाहते हैं वो क्या हमें मिला, या जो हमारा कस्टमर चाहता है वो उसको हमने दिया। अगर जो कस्टमर की डिमांड है उसको हम फुलफिल कर रहे हैं, जो चाह रहा है, तो क्वालिटी कहलाती है। अगर जो कस्टमर चाह रहा है उससे भी हमने एक्स्ट्रा दे दिया तो निकलता है ना, वाह ये हमने उम्मीद नहीं की थी लेकिन ये मुझे मिला। तो लाइक आज की डेट क्वालिटी की डेफिनेशन चेंज हो गई है। कस्टमर के मुंह से वाव निकलना चाहिए। जो उसकी नीड है, एक्सपेक्टेशन है, हम एक कदम उससे प्लस करके देते हैं तो इट मीन्स क्वालिटी फुलफिल होती है। द स्टैंडर्ड ऑफ द समथिंग एज मेजर्ड अगेंस्ट द अदर थिंग ऑफ ए सिमिलर। एक्सलेंस ऑफ समथिंग मतलब जब कस्टमर के नीचे वाव निकलता है तो उस केस के अंदर हम कहते हैं या इट इज ए रियली क्वालिटी। पहले टाइम में आईएसओ कहता था फिट फॉर फिटमेंट, फिट फॉर यूज, लाइक दिस। लेकिन आजकल फिटमेंट के अकॉर्डिंग कुछ और भी कस्टमर डिमांड करता है। तो हमें वो सारी चीजें ध्यान में रखते हुए क्वालिटी का ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्वालिटी उस लेवल की होनी चाहिए। जाते हैं ना हम भी कोई प्रोडक्ट अगर परचेज करने जाते हैं मार्केट के अंदर और उसने कुछ एक्स्ट्रा में दे दिया तो हम क्या चाहते हैं, यार कमाल है, इसकी तो एक्सपेक्ट नहीं की थी। जैसे मैं 1 साल पहले मोबाइल शॉप पे गया, मोबाइल लेने गया, लड़के को साथ ले गया था। उसने जाते ही पानी पिलवाया, फिर जूस पिलवाया। उसके बाद जब डीलिंग हो गई, नेगोशिएशन हो गया, हमने मोबाइल ले लिया तो उसने गिफ्ट दिया माइक्रोफोन और उसके साथ हमारे कुछ फोटोग्राफ्स उसने अपनी साइट पर डाले, फोटोज खींचे। तो लाइक मतलब मैं बार बार उस दुकान को याद करता हूँ, उस मोबाइल वाली शॉप को, कि यार रियल में उसने जो चाहा था, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे भी समथिंग बेटर करके दिया। तो लाइक इस तरह क्वालिटी की डेफिनेशन आज के टाइम में ये डिमांड है मार्केट की। क्वालिटी इज द डिग्री टू विच द क्वांटिटी मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर एट द स्टार्ट ऑफ इट्स लाइफ। या ये सो की डेफिनेशन है। Measuring quality. Quality is the specification driven. Does it meet the set requirement?
जो स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग वो सारी रिक्वायरमेंट उसकी है। स्टार्ट ऑफ लाइक दी परसेंटेज पासिंग द कस्टमर एक्सेप्टेंस, क्वालिटी इज ऑब्जर्वेबल बाय द नंबर ऑफ रिजेक्ट फ्रॉम द कस्टमर। इस केस के अंदर जो हम कैलकुलेट करते हैं कि हमने कितनी सप्लाई की और कितना माल रिजेक्ट होके आ गया, वो भी क्वालिटी की फॉर्म में हम मेजर करते हैं। People have found the many ways of the define what is the quality. Some of the most popular definitions for the quality are listed below, like degree of excellence, conference of the requirement, total characteristics which act to satisfy a need, fitness for use, fitness for purpose, freedom for defect, like this. Delighting customer. आज हम प्रोडक्ट अगर हम परचेज करने जाते हैं, कोई भी XYZ कोई भी प्रोडक्ट है, तो उसकी हम और भी क्वालिटी के पैरामीटर चेक करते हैं। ड्यूरेबिलिटी कितनी है, सर्विसेबिलिटी कितनी है, रिस्पॉन्स टाइम कितना है, ब्रांड वैल्यू है या नहीं है, लाइक ये सारी चीजें क्वालिटी की डेफिनेशन में आती हैं। मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट ले लिया, पता पड़ा उसका सर्विस सेंटर तो फरीदाबाद में है ही नहीं, या उसका सर्विस सेंटर गुड़गांव में है, उसको तो 24 घंटे आने में लगेंगे, या उसका रिस्पॉन्स टाइम 2 दिन का है। तो ऐसी सारी चीज़ों को हम क्वालिटी की डेफिनेशन में यूज करते हैं। इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी। आज की जो रिक्वायरमेंट है वो क्वालिटी के अंदर ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सपोज 2 साल की वारंटी है, 2 साल खत्म होते ही प्रोडक्ट मेरा डेड हो गया। तो ये सारी डेफिनेशन हम क्वालिटी की, आज के टाइम में क्वालिटी एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है, जो दिखेगा बिकेगा वरना नहीं, जिसकी की चर्चा होंगी, यस वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेना चाहिए। तो लाइक दिस आज हम 7 की शेड्यूल की बात करेंगे, जिसके अंदर हम पैराटो, स्टैटिक फ्लो डायग्राम, स्कैटर डायग्राम, काज एंड इफेक्ट, या इसको इसी का डायग्राम भी कहते हैं, हिस्टोग्राम, चेक शीट एंड कंट्रोल चार्ट्स। आज हम इस सब के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। व्हाट आर दी 7 QC टूल्स? 7 QC टूल्स हैं क्या? QC टूल आर द मीन फॉर कलेक्टिंग द डाटा। कलेक्टिंग द डाटा मीन्स जिस फॉर्म के अंदर मेरे को चाहिए, जिस डाटा को देख के मुझे पता लग सके कि मैं कहाँ हूँ, वेयर आई एम, और मुझे कहाँ जाना है। पहले कलेक्टिंग डाटा करेंगे, फिर एनालाइजिंग द डाटा, डाटा का एनालाइजिंग करेंगे, देन डाटा का एनालाइजिंग कर लिया, फिर रूट कॉज, आइडेंटिफाई द रूट कॉज करेंगे, एंड देन मेजरिंग द रिजल्ट, रिजल्ट उसके मेजर करेंगे। द टूल आर रिलेटेड टू द न्यूमेरिकल डाटा प्रोसेसिंग। ये जो हम यूज कर रहे हैं, ये डाटा रिलेटेड टू न्यूमेरिकल डाटा है। QC टूल, पैराटो डायग्राम, statistical oblique flow charts, scatter diagram, cause and effect या इसीगावा या फिशबोन, these are the same name for the cause and effect diagram, histograms, check sheets and control charts and graphs. Application of the QC tools in a problem. प्रॉब्लम को जो भी मेरी आ रही हैं किस तरह से QC टूल वर्क करता है, इसको अगर आप देख रहे हैं कॉलम में लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, डिफाइन द प्रॉब्लम, रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट्स, डिटेक्टिंग कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, डेवलप द इंप्रूवमेंट मेथड, सॉल्यूशन, इंप्लीमेंटेशन, एवल्यूएशन ऑफ रिजल्ट्स एंड द प्रोसेस कंट्रोल। और अगर आप रो में देखेंगे ग्राफ, चेक शीट्स, पैराटो, लाइक दिस, हिस्टोग्राम एंड कंट्रोल चार्ट्स, इन सब का हम टाइमिंग प्लान बनाएंगे कि मेरे को कब क्या क्या चीज करनी है, क्योंकि बिना प्लानिंग के तो कुछ भी नहीं होता। अगर आज मेरे को छोटा छोटा वर्क करना है तो पहले प्लानिंग फेज होता है, और फिर मैं उसमें प्लानिंग के साथ साथ उसको मॉनिटरिंग करता हूँ, एक एक एक्टिविटीज को करता हूँ। इसमें जो कॉलम में लिखी गई हैं ये सारी एक्टिविटीज लिखी गई हैं, और मैं कौन कौन से टूल कब कब यूज करूंगा
वो उसका इस तरह से आपको टाइमिंग प्लान बनाना है। अब हम बात करते हैं पहले पैराटो एनालिसिस। व्हाट इज द पैराटो एनालिसिस? इट इज नोन एज द 80-20 रूल। 80-20 रूल का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, व्हाई इट इज कॉल्ड द 80-20 रूल्स? बिकॉज 80% जो डिफेक्ट है वो 20% कॉजेज की वजह से होती है। अगर मैं उन 20% कॉजेज को किल कर दूं तो मेरे 80% डिफेक्ट खत्म हो जाएंगे। अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो मेरे 80% डिफेक्ट हैं वो मेरे 20% कॉजेज की वजह से हैं। अगर मैं उनको 20% कॉजेज को फिनिश कर दूं, किल कर दूं, किस तरह, जैसे कि पीछे आइडेंटिफाई करके उनके रूट कॉज को, तो मेरी 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। It is a problem solving tool generally used for the sorting out the significant cause that add to a leading share of the quality losses. Each problem comprises of the many minor problems. They are complicated to know how to solve them. So name of the Pareto comes for Italian. ये इटली से है, तो इसको इसीलिए हम Pareto डायग्राम भी कहते हैं। ओके, 80-20 रूल किस लिए कहते हैं, क्लियर होना चाहिए। जब भी हम कहीं जाते हैं तो पूछ लेते हैं कि 80-20 रूल्स, भाई इट इज कॉल्ड द 80-20 रूल। तो कि दिस इज ए यूनिक कैटेगरी ऑफ द बार डायग्राम दैट डिस्प्लेड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेवरल प्रॉब्लम्स या एक्शंस। अब पैराटो डायग्राम बनेगा कैसे? When is it used and the what result to be obtained? इसमें हम देख रहे हैं ए बी सी डी, ये मेरे डिफेक्ट्स हैं। और वर्टिकल में क्या है, अगर मैं लेफ्ट साइड देखूं तो लेफ्ट साइड इसकी क्वांटिटी है, मेरी डिफेक्ट की क्वांटिटी कितनी है, मेरी डिफेक्ट की क्वांटिटी कितनी है और उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है। जो पहला डिफेक्ट है उसका कंट्रीब्यूशन आया 30%। जो आप राइट साइड में वाई एक्सिस में देख रहे हैं, ये इसकी परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन है। ये 0 to 100 होती है। 0 to 100 मतलब किस तरह करते हैं, सपोज मेरी क्वांटिटी टोटल, जो मेरी क्वांटिटी निकली उसको मैं डिवाइड करता हूं और उसको परसेंटेज की फॉर्म में लाता हूं। परसेंटेज की फॉर्म में लाने के लिए मैं उसके पहले जो मेरा ए डिफेक्ट है उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करता हूं, उसका 30% है। अगर मैं ए प्लस बी कर देता हूं तो कितना हो गया मेरा 55%। और अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी कर देता हूं तो ऑलमोस्ट 75% हो गया। इट मीन जो मेरे 3 डिफेक्ट्स हैं, अगर मैं इसको मैं किल करता हूं तो मोर देन मतलब अप्रॉक्स 80% मेरा रिजेक्शन कम हो जाएगा। इसीलिए इसको 80-20 रूल भी कहते हैं। यूजेज एंड द रिजल्ट्स। हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम? यूज टू आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। यूज टू आइडेंटिफाई द काज ऑफ द प्रॉब्लम, काज मतलब रूट कॉज। यूज टू रिव्यू द इफेक्ट ऑफ द एक्शन टू बी टेकन, जो मैं एक्शन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, उसको मेरे को डिफाइन करना है। Allow the clarification, the important tasks. Allow the identification of the starting point. How to Pareto projection the effect of the measure to be taken. जो मैंने एक्शन लिया है उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, ये मेरे को पैराटो से बिफोर एंड आफ्टर में क्लियर होंगे कि पहले मैं किस कंडीशन पे था। ये 3 डिफेक्ट, ये 4 डिफेक्ट मेरे, जो 80% डिफेक्ट, जो मेरे 80% डिफेक्ट थे उनको मैं किल करता हूं तो मेरा रिएक्शन रेट क्या होता है। अब मैंने डिफेक्ट ले लिया, ए डिफेक्ट लिया, ए डिफेक्ट के अंदर इसको माइक्रो लेवल पे ले जाएंगे हम। माइक्रो लेवल पे ले जाओगे A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। उसको मैं 1 by 1 करूंगा। सपोज मेरा ए डिफेक्ट कोई भी आ रहा है, लेकिन ए डिफेक्ट के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज डिफाइंड है। सपोज विजुअल डिफेक्ट है, तो विजुअल डिफेक्ट में किस टाइप का डिफेक्ट है। अगर कोई पेंटिंग का इशू है, स्क्रैच का इशू है, उसको मैं अलग अलग से आइडेंटिफाई करूंगा।
भाई जब तक मेरे को माइक्रो लेवल पे पता नहीं होगा तो उसको मैं किस तरह किल करूंगा, और उसको किल करने के बाद मेरा एक्शन लेने के बाद जब मेरा कंफर्मेशन इफेक्ट हो गया तो उसके बाद मेरा किस लेवल पे आ गया। अब आप देख रहे हैं इसमें ये जो डिफेक्ट था वो किस पे आ गया, नीचे वाली अगर आप स्लाइड में देख रहे हैं कंफर्मेशन ऑफ द इफेक्ट, जब मैंने एक्शन लिया और उसका दोबारा एनालिसिस किया एनालिसिस, वो फिर किस कैटेगरी पे आ गया, थर्ड पर। फर्स्ट लेवल पे था वो किस पे आ गया, वो थर्ड लेवल पे। स्ट्रेसिफिकेशन क्या होता है, means of divide the whole into the smaller portion according to certain criteria. In case of the quality control, stratification generally means divide the data into several groups according to the common factor and tendency, type of the defect and cause of the defect. उसके क्या क्या टाइप ऑफ द डिफेक्ट हैं और उसके क्या क्या कॉजेज हैं उस डिफेक्ट में जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट जो मेरा सीक्वेंस है उसको दिखाते हैं एक प्रोसेस के अंदर कहाँ ऑपरेशन होना है, कहाँ उसमें इंस्ट्रक्शन होना है, कहाँ स्टोरेज होनी है, कहाँ मेरा ट्रांसपोर्ट होना है। तो ये फ्लो चार्ट के जरिए हम दिखाते हैं। फ्लो चार्ट में जो हम सिंबल्स यूज करते हैं वो AIAJ की अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। जो हमारा क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं, IATF के स्टैंडर्ड हैं, वर्ल्ड वाइज जो हम यूज करते हैं वो हम जैसे ऑपरेशन के लिए हम सर्किल लगाते हैं और इंस्पेक्शन के लिए डायमंड लगाते हैं। जिस जगह मेरा इंस्पेक्शन एंड ऑपरेशन दोनों केसेस हो रहे हैं वहाँ हम दोनों सिंबल एक साथ लगाते हैं। सर्किल के अंदर डायमंड लगाते हैं, बहुत सी जगह डायमंड के अंदर सर्किल लगाते हैं, दोनों के मीनिंग चेंज हो जाते हैं। फर्स्ट इंस्पेक्शन देन ऑपरेशन या फर्स्ट ऑपरेशन देन इंस्पेक्शन। लाइक फ्लो चार्ट के जो मेरे सिंबल्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस ऑफ द इवेंट इन ए प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर उसके सीक्वेंस क्या है इवेंट का, वो फ्लो चार्ट के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। अब स्पेसिफिकेशन, when it is used and what result will be obtained. The common and the basic principle of a quality control is the certification. It means to think a matter out of the breaking it into the smaller portion and specification as a number of the useful purpose. Method क्या है, grouping by day, time, place, work or process. Like this. इसको हम इस तरह से दूसरे ढंग से इसको समझते हैं। मेरी शिफ्ट चल रही है APC, शिफ्ट चल रही है मेरी APC, क्या मेरा ऑपरेटर है ऑपरेटर A, ऑपरेटर B, ऑपरेटर C। अगर मैं कोई भी प्रोसेस कर रहा हूँ ऑपरेटर A की क्या फीडबैक, ऑपरेटर B की क्या रिजल्ट है और ऑपरेटर C के क्या रिजल्ट है। लाइक इसी तरह A शिफ्ट के अंदर क्या है, B के अंदर क्या है, C के अंदर क्या है। तो मेरे को जब तक डाटा क्लियर नहीं होगा, माइक्रो लेवल पे डाटा नहीं मिलेगा, तो मैं डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से रूट कॉज उसके अंदर हैं जो कि आए हैं। यूजेस used to observe the variation among the states, used to identify the relationship between the cause and effect, used to identify a purpose and the mean to serve the purpose। तो इन सारी चीजों को करने के लिए मेरे को ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि मैं इसमें भाई मेथड पता होना चाहिए, यूजेस एंड द रिजल्ट। क्योंकि जो भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए मेरे को सारी चीजों का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इसका आइटम ले रखे हैं और इसमें मेथड ऑफ द स्ट्रेटिफिकेशन इसमें दे रखा है। मेथड ओवर AM PM, इमीडिएट वर्क, इमीडिएट आफ्टर वर्क, शिफ्ट, डे टाइम।
वेरिएशन अमॉन्ग वर्कर एज, मेल फीमेल, ईयर ऑफ द एक्सपीरियंस, टीम, शिफ्ट का भी लेते हैं इसमें, वेरिएशन अमॉन्ग द वर्क मेथड, प्रोसेसिंग मेथड, वर्क मेथड, वर्किंग कंडीशन, अमॉन्ग द मेजरमेंट एंड द इंस्पेक्शन, मेजरमेंट टूल में तो वेरिएशन नहीं है, किसी ने वो दूसरा मेजरिंग टूल यूज कर लिया, मेजरिंग मेथड, पर्सन परफॉर्मिंग द मेजरमेंट, मेथड ऑफ द मेजरमेंट। कहते हैं ना डाटा के लिए हमको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। आइटम क्या क्या लेंगे, जो भी मेरे को वेरिएशन लगता है, जिसमें में शिफ्ट वाइज लग रहा है, ऑपरेटर वाइज लग रहा है, इन्वायरमेंट वाइज लग रहा है, या इंस्पेक्शन मेथड वाइज लग रहा है। क्योंकि लास्ट जो हमारा सेशन था एमएसए का था, अगर मेरा मेजरमेंट सिस्टम ही सही नहीं होगा, जो मेरा डाटा आएगा निकल के जिस पे मैं वर्क करूंगा, तो वो अगर डाटा मेरा में प्रॉब्लम है, तो इट मीन जो मैं एक्सरसाइज आगे करने जा रहा हूँ कंट्रोल चार्ट्स की या 7 की शेड्यूल की या प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो उसके रिजल्ट भी गलत दिशा में चले जाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले मेरे को जो डाटा है वो जिस फॉर्म में एनालिसिस करना उस फॉर्म में मिलना चाहिए, और वो सारे रूट कॉज कैप्चरिंग होने चाहिए डाटा से, जो जो मेरे को वेरी करने के चांसेस हैं। स्कैटर डायग्राम क्या है? ये स्कैटर डायग्राम बेसिकली ये रिलेशनशिप है बिटवीन द टू पेयर इंटरलेटेड द डाटा टाइप। जैसे आपने मशीन चलाते हैं, हम देखते हैं ना, उसकी आरपीएम बढ़ा दिए मैंने, उसके आरपीएम बढ़ा दिए। अब आरपीएम बढ़ाने के साथ साथ क्या होगा मेरे को, अगर मैंने आरपीएम बढ़ाए हैं, अगर मैंने उसके आरपीएम बढ़ाए हैं तो उसको वेरिएशन आ गया। अगर उसके आरपीएम मैं बढ़ा रहा हूं और उसमें वेरिएशन आ रहा है, तो लाइक दिस इट इज सम प्रॉब्लम। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आरपीएम बढ़ाते हैं, लेकिन उसमें हमें वेरिएशन को भी टच में रखना है, चेक करना है कि क्या मेरा वेरिएशन उससे बढ़ तो नहीं रहा। अगर बढ़ रहा है तो मैं, आपने देखा है कि ऑपरेशन चेक शीट या इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड डेवलप किए जाते हैं, वो वैलिडेट करके ही किए जाते हैं कि मेरे किस वैल्यू पे, किस इनपुट पर मैक्सिमम आउटपुट मिल सकेगी, उसी तरह फ्रीज किया जाता है। इसमें बेसिकली इंटररिलेटेड डाटा टाइप का है, सच ऑफ द हाइट एंड वेट ऑफ ए पर्सन। अब देखते हैं जनरली पर्सन की हाइट बढ़ती है तो उसके वेट का स्टैंडर्ड भी चेंज हो जाता है। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दी two pair data. A scatter diagram provide a mean of the find the whether or not these two data type of the interrelated. It is also utilized to determine how the closely they are related to identify a problem. That should be controlled and improved. अगर मैं कोई भी चीज इसमें चेंज करता हूं तो मेरे को आइडेंटिफाई करना है मैं इसकी मैक्सिमम आउटपुट किस इनपुट पे ले सकता हूं। तो किसके जरिए होता है? स्कैटर डायग्राम के अंदर। ये आप जो राइट में लेफ्ट में देख रहे हैं, ये स्कैटर डायग्राम का एग्जांपल है। मेथड इसको चेक करने का क्या क्या है, इसमें जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो बेस्ट फिट लाइन के साथ में कितने प्लस आ रही है, कितनी मैंने नीचे की तरफ आ रही है, तो इसको हम एनालिसिस करते हैं। और इसमें हम मेन जो मेरी है कि किस इनपुट पर मैं मैक्सिमम आउटपुट ले सकता हूँ, ये मैं इसको क्लियर करता हूँ। यूजेस, इसका यूज कहाँ है? यूज टू आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन द टू मैटर्स। उसको पहले मेरे को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि कोई हीट ट्रीटमेंट प्लांट है, कितना टेम्परेचर पे मेरे को कितना टाइम के लिए रखना है जो कि मेरे को बेस्ट हो, वरना सब ऐसा ना करें मैक्सिमम टेम्परेचर रखे और मिनिमम टाइम रखे कि जी इससे आउटपुट मिल जाएगी। नहीं, इससे जो मेरी आउटपुट है वो नहीं मिलेगी, जो मेरी क्वालिटी प्रोडक्ट्स है वो मेरा अचीव नहीं होगा। इसीलिए मेरे को किस इनपुट पर बेटर आउटपुट मिलेगी, इससे इसको डिटरमाइन किया जाता है।
used to identify relationship between the two matters and distribution. हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको फ्रीज करते हैं. काउंटर मेजर बेस्ड ऑन देयर कॉज एंड द इफेक्ट रिलेशनशिप. उसका क्या क्या इफेक्ट होगा और उसके क्या क्या कॉजेज होंगे, दोनों के रिलेशनशिप देखकर हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं. रिजल्ट्स कैन आइडेंटिफाई द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कैन अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू रिजल्ट. दोनों रिजल्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हम इसी के जरिए पता करते हैं. बेसिकली स्कैटर डायग्राम जहां मेरे 2 वेरिएबल्स हैं और एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वहां मैं इसको यूज करता हूं. ठीक है. इंटरप्रेशन, ए रैंडम स्कैटर पॉइंट, नो कोरिलेशन. इसमें कोई कोरिलेशन दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें कोई कोरिलेशन दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको हम कहेंगे पहले को ए रैंडमली स्कैटर पॉइंट, नो कोरिलेशन. बी अगर हम देखेंगे पॉसिबल पॉजिटिव कोरिलेशन. बी क्या है? पॉसिबल पॉजिटिव कोरिलेशन. हम इसमें देख रहे हैं सी, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन. सी क्या है? स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव. इसमें हम देख रहे हैं बहुत कम वेरिएशन है, बहुत कम वेरिएशन है. डी में हम देखें पॉसिबल नेगेटिव कोरिलेशन जा रहा है और ई में देखें स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन. तो इस डाटा पे मैंने जिस तरह स्पीड बढ़ाई मशीन की, उस तरह मेरे को आउटपुट के अंदर क्या वेरिएशन आया. एक्स एक्सिस में स्पीड को लिखेंगे, वाई एक्सिस में क्या डाटा आ रहा है. तो इसको मैं ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं और इसको भी हमें चेक करना है कि मेरा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होना चाहिए. नेक्स्ट वन है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम. जैसा कि नाम से है, इसका क्या क्या कॉज है और क्या क्या उसके इफेक्ट पड़ रहे हैं. जैसे फिशबोन डायग्राम भी कहते हैं, इशिकावा डायग्राम. इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसको इशिकावा ने खोज किया था. ये है क्या? ये ग्राफिकल टूल है टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन एन इफेक्ट एंड देयर कॉज दैट इन्फ्लुएंस इट. एक ग्राफिकल फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि कोई भी काम क्यों करते हैं? आइडेंटिफाई द वेरियस कॉज इफेक्टिंग ए प्रोसेस. जैसे कि इससे पहले आपने एसपीसी की ट्रेनिंग ली होगी या एसपीसी के बारे में थोड़ा पता है. हमारे जो वेरिएशन आते हैं वो कॉजेज की वजह से आते हैं. अब कॉजेज कितने टाइप के होते हैं? कॉजेज 2 टाइप के होते हैं. नंबर कॉमन कॉजेज, सेकंड इज स्पेशल कॉजेज. कॉमन कॉजेज जो होते हैं, जो मशीन के अंदर इनहेरेंट रहते हैं, हमेशा रहते हैं, जिसको हम बड़ी मुश्किल से जानते हैं, गॉड नोज दीज कॉजेज. लेकिन जो स्पेशल कॉजेज हैं वो हमारी ही देन होती हैं. मशीन के अंदर वेरिएशन हो गया, अप्राइजर के अंदर वेरिएशन हो गया, मटेरियल में वेरिएशन आ गया, तो उनको हम आइडेंटिफाई करके दूर करते हैं. मेजरमेंट के अंदर वेरिएशन आ गया, तो उन सारे, इससे हमें क्या पता लगता है? आइडेंटिफाई द वेरियस कॉज इफेक्टिंग ए प्रोसेस. सारे कॉजेज को जो इफेक्ट कर रहे हैं हमें आइडेंटिफाई करने हैं. हेल्प द ग्रुप इन द रीचिंग ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग of a problem. Help reduce the incident of the subjective decision making. How? Define the problem or effect clearly. Generate the potential cause of the problem through the brainstorming. आखिर ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है क्या? ये ऑफिस के अंदर नहीं होती, ये गेम्बा होती है जहाँ प्रॉब्लम रियल में ही है, वहां पर हम जाएं और जो रियल में उस काम को कर रहा है उसकी भी हमें इनपुट लेनी चाहिए कि उसकी क्या क्या है ऑब्जर्वेशन वो, क्योंकि जो जिस ऑपरेशन को कर रहा है वो उसके सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है. ये तो मानते हैं ना कि जो काम डेली कर रहा है उसको,
तो उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम का पता होगा, तो उससे उस प्रॉब्लम को निकलवाना है, उसकी इनपुट लेनी है, क्या 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 इश्यूज आते हैं, ऐसे कर दें तो क्या होगा, स्पीड कम कर दें तो क्या होगा, किस तरह बनाएंगे, पेज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन द बॉक्स, आगे एग्जांपल भी देखेंगे। ऑन द राइट साइड ड्रा द मेजर कॉज कैटेगरी बॉक्सेस, लेफ्ट हैंड साइड commonly use the category are the man, machine, method, material, measurement and the environment। और हर एक कॉज पे पूछेंगे क्यों, वाई इट इज हैपन, वाई, जो भी दिमाग में आएगा वो सारा लिखेंगे, जितने भी प्रोबेबल कॉजेज हैं वो सारे की सारे हम लिखेंगे और वन बाई वन करके हम उनको वैलिडेट करेंगे। इट इज द एग्जांपल ऑफ द कॉज एंड द इफेक्ट डायग्राम, कॉज एंड द इफेक्ट डायग्राम। अगर यहां हम देखें राइट साइड में लिखा हुआ है, इसकी एक प्रॉब्लम थी, लो वेटिंग टाइम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द अल्ट्रासोनिक स्कैन। एक हॉस्पिटल का एग्जांपल ले रखा है इन्होंने, अल्ट्रासोनिक स्कैनिंग होनी थी, अल्ट्रासोनिक टेस्ट होना था, लो वेटिंग टाइम आ रहा था, क्यों आ रहा था, कौन कौन से रीजन हो सकते हैं उसमें, तो राइट साइड में बॉक्स के अंदर लिख लिया मैंने जो हो सकते हैं। अब मैंने मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड ये सारा लेके चला। पीपल, मैन में क्या क्या हो सकता है, नर्सिस जो स्टाफ है, शॉर्टेज ऑफ नंबर, भाई मैन मैंने लिया कि क्या रीजन हो सकता है, नर्सिस, क्या हो सकता है कि शॉर्टेज नंबर ऑफ स्टाफ है, इसी में क्या ले लिया, नर्सिस में और क्या क्या हो सकता है, एक्सपीरियंस नहीं है, ये नर्सिस का हो गया। पेशेंट जो है इज द सेम टाइम डू या मोर बुक एट द सेम टाइम, पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं। रिसेप्शन वर्क में प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैंने 4 टू इनपुट, काफी सारी इनपुट भरनी पड़ रही है, होता है ना कि पेशेंट इतनी ज्यादा आ रहे हैं और उसमें जो इनपुट उसको फॉर्म भरना है उसके अंदर बहुत सारी इनपुट है। मेडिकल चार्ट हार्ड टू टेल ए पार्ट, ये भी एक रीजन हो सकता है। तो आपने देखा कि मैन में ही कितने सारे हमारे प्रोबेबल कॉजेज निकल के आ गए। इसी तरह मेथड, मेथड में हमने लिया कैलकुलेशन ऑफ द बिल, चार्ट फ्रॉम द ऑल डिपार्टमेंट कम टुगेदर, और डिपार्टमेंट भी आ गए। हैंडलिंग, रिकॉर्ड फाइंडिंग में ज्यादा टाइम लग रहा है, डाटा इनपुट टेकिंग टाइम, चार्ट विल 4 साल रिटर्न टुगेदर। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के अंदर रिसेप्शन का ले लिया, पेशेंट का ले लिया, कंप्यूटर टर्मिनल, कई बार देखते हैं ना कि मेरा तो जी सिस्टम ही डाउन हो रहा है। जितने भी मेरे कॉजेज हैं वो सारे हम यहाँ लिखेंगे और जो जो मेरे कॉज बन के आ रहे हैं प्रोल का जी वन बाई वन करके उनको वैलिडेट करेंगे, सिमुलेशन टेस्ट करेंगे और जो मेरा नहीं है उसको क्रॉस करते चले जाएंगे, उसको क्रॉस करते चले जाएंगे वन बाई वन करके, वन बाई वन का क्रॉस करेंगे और जो मेरा सिमुलेशन टेस्ट के अंदर वैलिड कॉज आएगा क्रॉस कर सकते हैं या नॉट वैलिड लिख सकते हैं, और जो मेरा वैलिड आएगा उसको मैं लिखूंगा या इट इज वैलिड कॉज। तो जो वैलिड कॉज निकल के आएंगे उस पर मुझे क्या करना है, उस पर मुझे एक्शन लेना है, उस पर मुझे एक्शन लेना है। दैट इज कॉल्ड द कॉज इफेक्ट डायग्राम। जरूरी नहीं है एक ही प्रॉब्लम आई एक फिशबोन डायग्राम बना। अगर मैं माइक्रो लेवल की बात करूं, अगर हम देखते हैं कि मैन के ही इनपुट इतने सारे, मैन में वेरिएशन इतना आ रहा है, तो अकेले मैन का ही एक मेरा कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बन जाएगा। सेकंड पे इन्वायरमेंट का अगर है तो इन्वायरमेंट का बन जाएगा लाइक दिस। ऐसा नहीं है ये एक ही पेज पर मेरे को फिनिश करना है और घिच पिच हो रही है, पता नहीं लग रहा कुछ। इसको करने के बाद हर एक प्रोबेबल कॉजेज को लेके ये इनपुट आएगी कैसे, गैम्बा या ब्रेन स्टॉर्मिंग, जैसा कि पीछे हमने पढ़ा था ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग द्वारा आएगा। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग अगर मैं बात करूं, जनरेट द पोटेंशियल कॉज ऑफ द प्रॉब्लम थ्रू द ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे होगी,
जो एक्चुअल वर्क कर रही है वहां रिसेप्शन के अंदर या जो नर्स है, उन सब का मेरे को पता लगना चाहिए, उन सब की इनपुट मिलनी चाहिए, जो कि मैं इसमें नोटेड करूंगा और वन बाई वन करके उसको प्रैक्टिकली गैम्बा विजिट करके उसको सिमुलेट करके उसको चेक करेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये इसमें काफी सारे हो गए। सेकंड एग्जांपल है कि लीकेज का लिया है, पाइप के अंदर एक कोई पार्ट लग रहा है, सीवी बॉडी, ब्रेजिंग के दौरान ये लीकेज हो गई। ये ऑटो इंडस्ट्रीज का लिया हुआ है। अब उसके अंदर क्या क्या काम है, मटेरियल के अंदर आप देखेंगे, मटेरियल में भी जो मेरा फिलर मटेरियल है उसका क्या इम्पैक्ट है, जो मेरे पाइप है जिसको मुझे ब्रेजिंग करना है और सीवी बॉडी, उसके मटेरियल का कॉम्बिनेशन है या नहीं है, उसका वेट कितना है, उसकी कंपोजिशन, थिकनेस। अगर पाइप की थिकनेस कम है और सीवी बॉडी जो मैं यूज वर्ड लिया है, जो मैं उसको ब्रेजिंग कर रहा हूँ, क्या दोनों का मैचिंग है? अगर एक पार्ट हैवी होगा, एक पार्ट वेट कम है, थिकनेस कम है, तो क्या होगा? उसके अंदर मेरे को बहुत ज्यादा स्किल मैन पावर चाहिए। केमिकल कंपोजिशन ठीक है उसकी, क्या उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज तो नहीं है मैग्नीशियम वगैरह जो कि उसको ब्रेजिंग में डिफिकल्टी करती है? क्या उसमें वॉशिंग कोई कंटामिनेशन तो नहीं है ऑयल के पास? क्या डायमेंशन तो एनजी ही नहीं है? क्या उनके दोनों के बीच में जब मैं ब्रेजिंग कर रहा हूं गैप ज्यादा तो नहीं है, गैप कम तो नहीं है, इंटरफ्रेंस तो नहीं हो रहा पहले से ही? जब ही नहीं होगी बीच में तो फिलर मटेरियल जाएगा कहाँ? भाई कहते हैं ना फ्लो स्मूथ, जो उसके अंदर मैं फ्लक्स की क्वांटिटी लगा रहा हूँ या फिलर मटेरियल रॉड लगा रहा हूँ, उसकी क्वालिटी कैसी है? तो एक केस में इतने सारे मेरे प्रोबेबल कॉज निकल के आ गए, वन बाई वन करके इनको चेक करना है। अब मैन कहा जाता है उसका स्किल लेवल क्या है, ऑपरेटर की स्किल में क्या है, भाई उसका स्किल लेवल इस तरह से है, अनट्रेन्ड ऑपरेटर तो नहीं है। हम लोग बड़े आराम से कह देते हैं इट इज द ऑपरेटर मिस्टेक, इट इज फॉरगेट, नेग्लिजेंसी। अरे नेग्लिजेंसी तो है, लेकिन नेग्लिजेंसी के पीछे क्या रोल है? क्या जो उसे ब्रेजिंग करनी है वो घुमा के करनी है वहां तक फिल्म पहुंचती है? ये नहीं पहुंचती है। जैसे कि इससे पहला वाला एग्जांपल है, ऐसा तो नहीं डेस्क की हाइट ही जाता है, फाइल को नीचे रखने में टाइम लग रहा है। ये भी सिस्टम में लिया जाता है बॉडी मूवमेंट, मतलब बंदे को कितना मुड़ना पड़ रहा है, कितना घूमना पड़ रहा है, ये सारे का सारा हमको ध्यान रखना है। लोड ऑफ प्रोडक्शन मशीन के अंदर अगर हम देखें, फिक्चर का डिजाइन कैसा है, मैनुअल रोटरिंग है या ऑटो रोटरिंग है, या मैन पावर को उठ के उसके चारों तरफ घूमना पड़ रहा है? भाई सिस्टम कहता है इजी टू असेंबली, इजी टू मैन्युफैक्चर। हम जो है डिजाइन लेवल को करते हैं तो ये कहां से आएगा? इजी टू असेंबली, इजी टू मैन्युफैक्चरिंग, ये सारा की सारा सिस्टम भी ये कहता है कि जब हम इसको करते हैं, डिजाइन करते हैं, तो इन सारी चीजों को ध्यान रखा जाए। तो एक कहां निकल के आ गई ये? अगर मैं ये कहूं कि इसमें पाइप रोटेटिंग टेबल जो है सही नहीं है, तो जो पी ने डिजाइन किया है इट इज, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मेथड, मेथड के अंदर सीबी गाइडिंग ब्लॉक, रीसेटिंग टू द फ्लेम ड्यूरिंग ब्रेजिंग, अगर उसे रीसेटिंग करनी पड़ रही है, गैस का प्रेशर सेटिंग एनजी हो गया, टॉर्च फ्लेम की सेटिंग एनजी है,
स्किल लेवल वेरिएशन है। तो इन सारी चीजों को वन बाई वन करके मेरे को क्या करना पड़ रहा है, वन बाई वन करके हर एक कॉज को वैलिडेट करना है। हर एक कॉज को वैलिडेट करना है वन बाई वन करके। और कौन से वैलिड कॉज हैं, कौन से नॉट वैलिड कॉज हैं, जो वैलिड कॉज है उस पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। अब आते हैं हिस्टोग्राम। क्या है ये हिस्टोग्राम, क्यों जरूरत पड़ती है हिस्टोग्राम की, क्या है हिस्टोग्राम? ए बार चार्ट, इसे हम बार चार्ट भी कहते हैं, डेट डिस्प्ले द वेरिएशन विद इन ए प्रोसेस। ये मेरे प्रोसेस में जो वेरिएशन है उसको दिखाता है। आल्सो कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट, बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ द occurrence of any given value is represented by the height of the bar। अगर हमने 10th क्लास या 12th क्लास के अंदर पढ़ा हो तो इसके अंदर हिस्टोग्राम बनाते थे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ग्राफ बनाते थे। इससे मुझे क्या पता पड़ता है, जितना कि मेरा वेरिएशन है प्रोसेस के अंदर, और इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी कहते हैं। हाइट ऑफ द बार क्या दिखाती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द occurrence, कितने नंबर आए हैं, कितनी बार आए हैं। अगर मैं हाइट चेक कर रहा हूँ किसी भी वर्क पीस की, सपोज उसकी 4 फुट है, 3 फुट समथिंग है, 3 फुट 2 इंच है, 3 फुट 4 इंच है, इस तरह से अगर 4 फुट वाले ज़्यादा पीसीज हैं तो उसकी जो हाइट आएगी, नंबर दिखाएगा वो इतनी हाइट की इतनी पीस। आगे इसका एक एग्जांपल भी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब ये हो गया है क्या, इसको क्यों यूज करते हैं? Allow the one to quickly visualize what's going on with a large amount of data। मेरा डाटा किस जगह जा रहा है, सेंट्रल वैल्यू के नजदीक है, लोअर वैल्यू के, लोअर स्टैंडर्ड वैल्यू के नजदीक है, या हाई रेंज के पास है। हमने पढ़ा है ना अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट, लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट, तो लोअर की तरफ ज्यादा जा रहा है या हायर की तरफ ज्यादा जा रहा है, इसको ये क्विकली विजुअलाइज कर सकते हैं। प्रोवाइड द क्लू टू कॉज ए प्रॉब्लम, ये क्लू भी देता है। मे बी यूज टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द इंजीनियरिंग टॉलरेंस एंड द कैपेबिलिटी ऑफ द प्रोसेस। ये कैपेबिलिटी ऑफ द प्रोसेस का भी हमें दिखाता है, क्या रिलेशनशिप है। कब यूज करते हैं, कैपेबिलिटी स्टडी आर बीइंग परफॉर्म एनालाइजिंग द क्वालिटी ऑफ द इनकमिंग मटेरियल। इनकमिंग मटेरियल मीन्स ये नहीं है केवल ये इनकमिंग पर यूज होता है। इनकमिंग का मीनिंग इसका बेसिकली इसमें ये है, एक्चुअली जो भी मेरे सारे सब प्रोसेस हो रहे हैं कंपनी के अंदर, प्रोसेस हो रहे हैं, एक प्रोसेस जो पहला वाला प्रोसेस है वो नेक्स्ट प्रोसेस का इनकमिंग है। भाई नेक्स्ट प्रोसेस का वो क्या है, इनकमिंग है। तो उस डाटा को प्रोसेस स्टेज बाय स्टेज पर जहां जरूरत है वहां इसको एनालाइजिंग किया जाता है। किस तरह करेक्ट करते हैं, इससे बेसिकली हिस्टोग्राम से मेरे को क्लियर पता लग जाता है कि प्रोसेस मेरा कंट्रोल में है या नहीं। कंट्रोल में कब कहा जाएगा, जब उसके अंदर स्पेशल कॉजेज को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, ओनली कॉमन कॉज ही प्रेजेंट होंगे, देन मेरा ये डाटा कहा जाएगा कि कंट्रोल। अब ये कैसे देख के पता लगेगा, कि देखने से पता लग जाता है। कलेक्ट द मेजरमेंट डाटा फ्रॉम ए प्रोसेस, जिस डाटा का मैं करना चाहता हूँ 30 या मोर देन डाटा इसमें होने चाहिए। फाइंड दी इसकी रेंज। अब मेरे को अगर मेरे को हिस्टोग्राम बनाना है तो मेरे को क्या क्या पता होना चाहिए, मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए, भाई कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होगा, दोनों के बीच में कितना गैप है वो पता होना चाहिए, नंबर ऑफ द बार कितने बनेंगे। अगर मेरे को ये पता लग जाए तो मैं बना सकता हूँ। इसे मिनिमम 30 डाटा चाहिए, उसकी क्या निकालेंगे हम, रेंज निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, भाई मेरे को क्या चाहिए, बेसिकली मेरे को पता होना चाहिए मेरे को आगरा पहुंचना है,
इसमें अगर क्या पूछना है, मेरे को क्लासेस पता होना चाहिए, क्लास विड्थ पता होना चाहिए, और कहां से स्टार्ट करना है। मेरे को कहां से स्टार्ट करना और क्लास विड्थ कितनी होनी चाहिए, बीच में गैप कितना होना चाहिए। हिस्टोग्राम में वन पीक टू अदर पीक, तो 30 से ज्यादा डाटा कलेक्ट करूंगा, रेंज निकालूंगा। रेंज कैसे निकालूंगा मैं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, रेंज आके नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होनी चाहिए, जो मैंने डाटा लिया है उसका स्क्वायर रूट निकाल लूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ क्लासेस आ जाएगा। अगर जो मैंने 30 डाटा लिया है उसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 5 5 25, 6 चांग 36, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, तो 5 से 6 के क्लासेस बनेंगे। अब क्लास विड्थ, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, उसे मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ, आर प्लस डब्ल्यू बाई के। डब्ल्यू इज द लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, के मैंने निकाला है, रेंज भी मैंने निकाला है, तो मैं क्लास विड्थ निकाल लूंगा। स्टार्ट कहां से करना है, जो उसकी एक्स मिनिमम है उसमें से क्या माइनस करूंगा, लिस्ट काउंट का हाफ कर दूंगा। एक्स मिनिमम माइनस 0.5 डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है, लिस्ट काउंट। अगर मैं 1 ईयर यूज कर रहा हूँ उसकी लिस्ट काउंट है 0.01 mm, तो 0.5 कितनी हो गई, 0.005, ठीक है ना। अब ये तीन चीज मेरे को मिल गई, हिस्टोग्राम कैसे कंटिन्यू करेंगे, ये इसमें नंबर ऑफ क्लासेस दे रखा है, ऑब्जर्वेशन दे रखी है। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, टैली चार्ट कैसे बनाएंगे हम, टैली चार्ट बनाएंगे, डाटा को वन कॉलम में लिखेंगे और उसमें जितने आते जाएंगे, मैंने क्लास विड्थ लिख ली, सपोज मेरा 5 से लेकर 6 तक है, 5.2 5 टैली चार्ट 1 2 3 4 5 में क्रॉस कर देते हैं। इस तरह से मैं फ्रीक्वेंसी टेबल बना लूंगा और इससे मेरी नंबर ऑफ क्लासेस निकल के आ जाएंगी और ये मेरा हिस्टोग्राम आपको बन जाएगा। बन रहा है ना, 0.5, 5.5, 10.5, लाइक ये जो आप इसमें देख रहे हैं ये इसके नंबर्स हैं, 5 10 15 20। अगर मेरा हिस्टोग्राम बेल शेप है, बेल शेप मतलब मंदिर में जाते हैं, घंटी सबने देखी है, उस घंटी को हम बेल शेप कहते हैं। इसके सेंटर पॉइंट को अगर मैं मिलाता चला जाता हूँ, अगर वो बेल शेप बन रहा है, इट मीन्स देयर इज, इसके अंदर कोई भी स्पेशल कॉजेस नहीं है। टाइप ऑफ हिस्टोग्राम, जैसा कि पहली वाली स्लाइड के अंदर बताया गया था, इसमें बताया गया है ना, प्रोवाइड द क्लू, प्रोवाइड द क्लू ऑफ द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का क्लू भी ये देता है किस तरह। जनरल टाइप इस तरह का बनना चाहिए, कॉम टाइप, पॉजिटिव स्क्यू, लेफ्ट हैंड साइड, प्लेटन्यू, ट्विन पीक, आइसोलेटेड। अगर ट्विन पीक बन रहा है तो मशीन की सेटिंग इस तरह की है कि उसमें ओवल्टी ले रहा है, वो जर्क ले रहा है, एक पीक की जगह दो पीक बना रहा है। पॉजिटिव, वन साइड हो रहा है डाटा, लेफ्ट साइड इसकी टोटली सेटिंग लेफ्ट साइड जा रही है, अगर यूएसएल है तो यूएसएल की तरफ जा रही है। तो इस डाटा को देख के मुझे पता लग जाता है कि मुझे टूल में करेक्शन करनी है, कहाँ मेरा वेरिएशन है। आगे बात करते हैं चेकशीट। चेकशीट क्या है, ये इजी मेथड है अंडरस्टैंड दी, जो मेरा डाटा है, जो मेरा प्रोसेस है, वो मेरा कहाँ जा रहा है, इवेंट क्या कर रहा है मेरा, तो उसको अंडरस्टैंडिंग है कि मेरा कहाँ मेरा प्रोसेस जा रहा है। ठीक है ना, देख के पता लग जाता है मेरा प्रोसेस कहाँ जा रहा है। अगर ग्राफ की फॉर्म में, अगर मेरा ग्राफ की फॉर्म में प्लस 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 बढ़ता जा रहा है, ओहो रिएक्शन लेवल बढ़ रहा है, कभी कम ज्यादा हो रहा है, इट मीन्स कहीं कोई कंट्रोल नहीं है या कुछ स्पेशल कॉजेज आ रहे हैं। क्यों यूज करते हैं इसको, यूज करते हैं कि फैक्ट को जानने के लिए। कब यूज करते हैं, गैदरिंग द डाटा इन द ऑर्डर ऑफ द डिटेक्ट पैटर्न, सोल्विंग सर्कल के लिए यूज किया जाता है, कहा मेरे को एक्शन लेना, क्या कह रहे हैं। चेकशीट यूज के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं भाई।
मेरा डिफेक्ट किस लोकेशन पे आ रहा है, लोकेशन बाय चेक शीट हो सकती है, फ्रीक्वेंसी कर्व टाइप हो सकती है, खाली ऑब्जर्वेशन टाइप हो सकती है। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चेक शीट यूज करता हूँ, हम लोग यूज करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। टीम एग्रीज एज टू एग्जैक्टली व्हाट इवेंट इज बीइंग observed. Decide on the time period during the which data will be collected. This could range from the hour to weeks. Design a form of that is the clear to easy to use. ऐसा नहीं होना चाहिए चेक शीट दे दी और पता लगा ये तो यूज करने में ही बड़ी टिपिकल है। डाटा को एंट्री करने के लिए स्पेस तो देंगे। और सैम्पलिंग साइज इस तरह का होना चाहिए जो कि पूरी की पूरी प्रोडक्शन के बिहेवियर को रिजल्ट करे। पूरे के पूरे जो मेरा डाटा है, जो मेरा सैम्पलिंग प्लान है, इस तरह का होना चाहिए। उसमें पूरे के पूरे प्रोडक्शन को, पूरे डाटा को, पूरी जो मेरे प्रोडक्शन का डाटा है उसको रिप्रेजेंट करे। लाइक दिस डायग्राम टाइप चेक शीट, फ्रीक्वेंसी टाइप चेक शीट, इंस्पेक्शन चेक शीट। इसके अलावा दीज आर ओनली द एग्जांपल्स। कुछ कंपनियां ये यूज करती हैं डायरेक्ट, जैसे कोई डायमेंशन है 10 प्लस माइनस 0.1, कितने से कितने तक चाहिए, 9.9 से लेके 10.1 तक होना चाहिए। बहुत सी कंपनियां चेकशीट यूज करती है, डायरेक्ट रीडिंग भरवाती है 9.92, 9.94, 10, 10.0। बहुत सी कंपनियां, अगर आप मारुति का स्टैंडर्ड देखें तो क्या कराती है, टॉलरेंस हो गई, वो किस तरह भरवाती है, अगर 9.2 डायमेंशन आई है उसको भरवाएगी -0.08। वो फर्दर देखते हैं मेरा एक से ज्यादा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको इजी होता है देखने में कि 1 से कोई ऊपर नीचे तो नहीं है, ऊपर नीचे तो वो रिजेक्ट है, आउट ऑफ टॉलरेंस। वो खाली टॉलरेंस प्लस माइनस 1 दे दी। अगर सपोज वैल्यू आई 10.09 तो उसको क्या भरेंगे, +09, लाइक दिस। अब आते हैं हम कंट्रोल चार्ट्स एंड ग्राफ्स। व्हाट इज दिस? कंट्रोल चार्ट्स, कंट्रोल चार्ट को बेसिकली हम लेके चलते हैं। ये याद करने या किसी को किस तरह याद कर सकते हैं, इसके लिए मैं सोच रहा था। आप इस तरह से समझते, एक दादाजी थे, एक दादाजी थे, उनके दो बेटे हुए, दो बेटे हुए, एक का नाम था वेरिएबल, दूसरे का नाम था एटम। पहले हम ये देख लेते हैं कंट्रोल चार्ट क्या है, क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करना है, कब यूज करना है। क्योंकि पहले बताया गया था ना, कोई भी काम करने से पहले हमें पता होना चाहिए क्या है ये, क्यों करना है, कब करना है, कहाँ करना है। कंट्रोल चार्ट है क्या? A control chart is a line graph used for the display the variation on the time order the fashion. A center line and the color control limit are placed on the graph which help the analysis the pattern of the data. बेसिकली मैं बताता हूँ यह है क्या। अगर आप पहले देखें, चले जाएं पास में, वहां क्या होता था, माल बनाया, 100% चेक किया, जो के है सप्लाई कर दिया, एनजी को 2 कैटेगरी में कर दिया, रिवर्क या स्क्रैप। कंट्रोल चार्ट प्रिवेंटिव टूल है, ये हमें डिफेक्ट बनने से बचाता है, पहले ही बता देता है, अलार्म देता है, घंटियां बजती हैं कि आई एम गोइंग आउट ऑफ स्पेक, आई एम गोइंग आउट ऑफ इफेक्ट, प्लीज कंट्रोल मी, प्लीज कंट्रोल मी। अब कंट्रोल तो वो करेगा ना जिसको पढ़ना आता हो, कंट्रोल चार्ट को देख के पढ़ना आता हो, तो इसीलिए इसकी नॉलेज की जरूरत पड़ी कि ग्राफिकल फॉर्म में होता है। क्यों यूज करते हैं? इससे मुझे क्लियर पता लगता है कि इसके अंदर स्पेशल कॉजेज है या कॉमन कॉजेज है। तो स्पेशल कॉजेज है उसको मैं दूर करूंगा। कब यूज करते हैं? जहां मेरे को क्रिटिकल डायमेंशंस कंट्रोल करनी है, जो भी डायमेंशन मेरे को कंट्रोल करनी है, जैसे मेरे को रिजेक्शन नहीं चाहिए, वहां हम यूज कर, उस जगह में यूज करेंगे वेयर एट द टाइम अर्लीस्ट पॉसिबल पॉइंट इनटू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर जहां भी लग रहा है, वहां जहां पॉसिबल है वहां मेरे को
क्रिटिकल डायमेंशन पे इसको यूज करना है। हाउ? Define the process parameters. Define the where the process control correctively we measure. Select where the control chart to be used. Determine the sample size and the frequency. भाई कितना सैंपल साइज लेना है, कितनी फ्रीक्वेंसी के बाद चेक करना है, ये सारा पता होना चाहिए। मेजरमेंट, प्लॉट द मेजरमेंट ऑफ द ग्राफ, डॉट पॉइंट से इसको हम दिखाते हैं। बेसिकली इसमें है क्या, अब इसमें एक वर्ड आया टेक द मेजरमेंट। जो भी कंट्रोल चार्ट के अंदर इंस्ट्रूमेंट आप यूज करेंगे वो इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट होना चाहिए और उसका एमएससी होना चाहिए, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। एमएससी क्या है? बेसिकली जो मैं डाटा लूंगा वो डाटा रियल में ठीक है या नहीं है, वो डाटा रियल में ठीक है या नहीं है, हमें वो देखना है। अगर मेजरमेंट ही ठीक नहीं है, उसी में एरर है, तो मैं जो डाटा भर रहा हूँ ओके को एनजी बता रहा हूँ, एनजी को ओके बता रहा हूँ, तो कंट्रोल क्या करूँ? कुछ नहीं। भाई किसी चीज को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट मैं यूज कर रहा हूँ वो उसका ओके होना चाहिए। अब वो कैसे पता लगेगा? इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड हो, एमएससी हो। एमएससी भी कर दिया जी, बहुत बढ़िया रहा है एमएससी। मैं एक इंडस्ट्रीज के अंदर गया था जस्ट 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट का ब्रेक लूंगा। अब मैं एक कंपनी के अंदर गया हुआ था, मैं वापस आ गया हूँ और उसमें क्या हुआ जी, एसपीसी चल रही, कंट्रोल चार्ट चल रहा था। बोले जी ये देखो कंट्रोल चार्ट चल रहा है, सब कुछ ठीक है। मैंने कहा ठीक है। अब बेसिकली कैलिब्रेशन देखा, कैलिब्रेशन में ठीक है, उनका कोई एरर आ रही थी। मैंने कहा इसका एमएस से, बोला जी एमएस से भी कर रखा है, बढ़िया कर रखा है। अब वो डायमेंशन चेक कर रहे थे से 14.6 प्लस माइनस 0.1, ठीक है, वर्नियर था। मैंने कहा एमएस से दिखा दो, एमएस से दिखा दिया। अब जो एमएस से उन्होंने दिखाया वो बढ़िया चल रहा था जी। उनका अच्छा, मैंने कहा इस वर्नियर से और क्या क्या चेक करते हो? बोले जी एक डायमेंशन है 27 पॉइंट समथिंग, वो चेक करते हैं। मैंने कहा अच्छा, और? बोले जी और चेक करते हैं हम 40 पॉइंट समथिंग। पहली चीज मैंने उसका कैलिब्रेशन देखा तो कैलिब्रेशन पॉइंट कितने पे हो रखे थे? 0 पे, 25 पे, 50 पे, 75 पे, 100 पे, 125 पे। मैंने कहा आप चेक कर रहे हो 14 पॉइंट समथिंग डायमेंशन, इसके बीच के एरर का तो पता ही नहीं लगा। कैलिब्रेशन जो कहता है जो आपकी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है उसके बीच के 3 पॉइंट शुड बी कैलिब्रेटेड होने चाहिए। उस पॉइंट पे वेरिएशन आपको पता होना चाहिए, उस पॉइंट पे आपको वेरिएशन पता होना चाहिए। एमएस से किससे कर रखा है जी? स्लिप गेज से। भाई ऑपरेटर जो चेक कर रहा है, इंस्पेक्टर जो चेक कर रहा है, वो एक्चुअल पार्ट को चेक कर रहा है, उस पार्ट के ऊपर ही एमएस से होना चाहिए, जब भी तो पता लगेगा कि मेजरमेंट सिस्टम ठीक है या नहीं है। तो इस सारी चीजों को ध्यान करना है। एसपीसी कंट्रोल चार्ट यूज करने से पहले जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हैं उसका एमएसए बहुत ज्यादा जरूरी है। 1 मिनट, ये जो अभी मैं पीछे बात कर रहा था, एक ग्रैंड पाते, उनके 2 बच्चे हुए, एक का नाम था वेरिएबल, दूसरे का नाम था एट्रीब्यूट। अब वेरिएबल के कितने हुए? वेरिएबल के 3 हुए।
वेरिएबल के 3 बेटे हुए। ये कंट्रोल चार्ट की हिस्ट्री है। कंट्रोल चार्ट ऊपर ग्रैंडपा हो गए, उसके 2 लड़के हुए, एक का नाम वेरिएबल, दूसरे का नाम एट्रीब्यूट। वेरिएबल के 3 लड़के हुए, लड़के या लड़की 3 बच्चे हुए, उनके नाम क्या क्या थे कंट्रोल चार्ट में? कंट्रोल चार्ट 2 तरह के हुए। देयर आर 2 टाइप ऑफ द कंट्रोल चार्ट्स, फर्स्ट इज वेरिएबल, सेकंड इज एट्रीब्यूट। वेरिएबल के कौन कौन से कंट्रोल चार्ट्स हुए? जो उसके 3 चाइल्ड हुए, एक्स एंड एम आर चार्ट, सेकंड एक्स बार आर चार्ट, थर्ड इज एक्स बार एंड सिग्मा चार्ट। पहला जो चार्ट है एक्स एंड मूविंग रेंज चार्ट, उसको हम कहते हैं मूविंग रेंज चार्ट। उस चार्ट को जहाँ की सैंपल साइज 1 होता है वहां हम यूज करते हैं। सैंपल साइज 1 होता है। सैंपल साइज 1 किस जगह होता है? जहाँ की मेरा डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है। वो क्या होता है? टेस्टिंग करने के बाद वो पीस मेरा स्क्रैप हो जाए तो उसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। बस्टिंग टेस्ट, इस जगह जो मैं यूज करता हूँ, ये मूविंग रेंज चार्ट यूज करता हूँ। इसमें मुझे रेंज की वैल्यू सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करनी पड़ती है तो मेरी रेंज आ जाती है। सेकंड चार्ट एक्स बार आर चार्ट, ये बहुत फेमस चार्ट है और जनरली 99 कंपनियों के अंदर ये यूज किया जाता है। इसके अंदर सैंपल साइज 3 to 7 रखते हैं, लेकिन जनरली आप देखते हैं इसके अंदर 5 का सैंपल साइज रखते हैं। क्यों रखते हैं? एक तो प्रोसेस की वेरिएशन पता लग जाता है 5 में, 7 में भी लग जाएगा, उससे और ज्यादा लगेगा, बट ये इजी टू कैलकुलेट होता है एक्स बार आर चार्ट, जिसकी क्या हम चर्चा करेंगे। तीसरा होता है एक्स बार एंड सिग्मा चार्ट, जहां मेरा मशीन के अंदर इस सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, रेंज की जगह वो सिग्मा को कैलकुलेट करता है, दैट इज कॉल्ड एक्स बार एंड द सिग्मा चार्ट। ये जो आप टेबल देख रहे हैं, हर एक के अंदर 25 सब ग्रुप होने चाहिए। मिनिमम 20 सब ग्रुप कहते हैं, लेकिन 25 लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहता है। सैंपल साइज हम इसमें 5 रखते हैं। ये एक्स बार आर चार्ट की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर नंबर ऑफ सब ग्रुप n, ये कांस्टेंट यूज होंगे A2, D3, D4, D2। अगर सैंपल साइज 2 रखूंगा तो मेरे को इस टेबल में से कैलकुलेशन की टेबल डाटा निकालूंगा। D3 रखूंगा तो ये टेबल रखूंगा, डैश कमेंट मीन के 0। D4 की ये वैल्यूज रखूंगा और D2 स्मॉल D2 की ये वैल्यू रखूंगा। ये मैंने डाटा ले लिया, ठीक है जी, ये मेरे कांस्टेंट हो गए। अब ये देखने में कैसा होगा? अब आप इसमें देख रहे हैं एक्स बार एंड दी आर। इसमें नीचे एक टेबल बनी हुई होगी, वहां मैं 5 रीडिंग मारूंगा, सबमिशन ऑफ एक्स आएगा जितनी रीडिंग है, और एक्स बार निकाल लूंगा। उन 5 को सम करके 5 से डिवाइड करके एवरेज निकाल लूंगा। आर उसके मैक्सिमम में से माइनस मिनिमम को माइनस करूंगा, आर निकल जाएगा। इस तरह पूरे सब ग्रुप की निकाल लूंगा और इसमें प्लॉटिंग करूंगा। प्लॉटिंग कर लिया आप। अब ये आता है अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट। ये मैं किस तरह निकालूंगा? ये जो मेरी एक्स बार निकल के आएगी यहाँ, उसको दोबारा उसकी एवरेज निकालूंगा। अगर 25 सब ग्रुप है 25 की निकालूंगा, एक्स डबल बार आ गई। आर बार जो मेरी आर वैल्यूज आई है उसको मैं एवरेज निकाल दूंगा, आर बार आ गया। तो यूसीएल जो मेरा आएगा, यूसीएल किस तरह आ जाएगा? एक्स डबल बार प्लस A2 आर बार। एक्स डबल बार में A2 की डाटा यहां से लूंगा। 5 के लिए कितना है? 0.577। यूसीएल आ गई, एलसीएल आ गई, दोनों को ड्रा करूंगा, देखूंगा इनमें से कोई कंट्रोल से बाहर तो नहीं जा रहा। कंट्रोल से बाहर तो नहीं जा रहा। इसी तरह यूसीएल आर निकालूंगा, D4 आर बार। D4 की वैल्यू होगी 2.114, निकाल लो। एलसीएल D3 की वैल्यू 0 होगी तो 0 होगी। अब इन दोनों में एक्स बार आर चार्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा? दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब भी मैं देखूंगा सबसे पहले आर को देखूंगा, क्योंकि एक वैल्यू अगर मेरी आ रही है, सपोज कोई स्पेसिफिकेशन है 8.5 प्लस माइनस 0.5, तो 8 से लेके 9 तक जा सकती है, 8 से लेके 9 तक जा सकती है। एक वैल्यू आ गई मेरी 8.9, दूसरी आ गई 8.1, दोनों का एवरेज कितना आ गया?
वो तो नॉर्मल के पास आ गया। लेकिन अगर मैं रेंज देखूंगा तो रेंज में तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ गया। रेंज में तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ गया, 0.8 का आ गया। अगर 8.1 है और 8.9 है तो रेंज में देखूंगा सबसे पहले। अब ये कैसे पता लगेगा ये कंट्रोल में है या नहीं है? अगर कोई भी पॉइंट आउट ऑफ कंट्रोल लिमिट जा रहा है देन कंटिन्यूसली वन साइड सेंटर लाइन से 7 पॉइंट एबनॉर्मल जा रहे हैं, 11 पॉइंट में से 10 पॉइंट वन साइड है, 14 में से 12 पॉइंट, 20 में से 16 पॉइंट अगर वन साइड है तो मेरा आउट ऑफ कंट्रोल लिमिट है। या इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं या इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। अगर लगातार मेरे पॉइंट इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो भी मेरा पॉइंट क्या होगा, आउट ऑफ कंट्रोल लिमिट होगा। 2/3 2/3 पार्ट्स मेरे 1.3 टॉलरेंस में होने चाहिए। इट मीन्स क्या हुआ, ये जो मेरी वैल्यूज आ रही हैं यूसीएल एलसीएल, यूसीएल और एलसीएल, उनको मैं 3 डिवीजन में काट दूंगा तो मेरे 2/3 पार्ट 1/3 में होने चाहिए 1 सिग्मा में। ठीक है, तो उस केस में मेरा क्या है, इसके अंदर कोई भी स्पेशल कॉज नहीं है। ग्राफ are the among of the simplest and the best technique to analyze and display the data for the easy communication. For the easy communication, various type of the graph are generally used are shown in the below, like bar chart, trend chart, pie chart. ये एग्जांपल है। हम देखते हैं ना किसका कितना कंट्रीब्यूट है पैसे के रूप में, परसेंट रिजेक्शन की परसेंटेज के रूप में। मैनेजमेंट ये तो चाहती है मेरा एक्स डिफेक्ट के कारण हुआ, एक्स मॉडल में हुआ, उससे रोकड़ा कितना गया। तो इसको दिखाने के लिए बड़ा इजी मेथड है। समरी से पहले एक चीज और कहना चाहेंगे हम। अभी मैं बात कर रहा था कंट्रोल चार्ट की, तो वेरिएबल के चार्ट हो गए। अब मैं आता हूँ एट्रीब्यूट की। एट्रीब्यूट जो कंट्रोल चार्ट होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, उसके 4 लड़के हुए या 4 चिल्ड्रन हुए, पी, एनपी, सी एंड यू। पी एंड एनपी आर यूज फॉर द डिफेक्टिव। डिफेक्टिव और डिफेक्टिव पता होना चाहिए। डिफेक्टिव मीन्स मैंने 10 पीस बनाए, उसमें से 4 पार्ट मेरे खराब निकल गए, दैट इज कॉल्ड डिफेक्टिव। डिफेक्टिव के लिए कौन से यूज होंगे, पी एंड एनपी चार्ट। सी एंड यू चार्ट यूज होते हैं डिफेक्ट के लिए, जहाँ की डिफेक्ट हम काउंटिंग करते हैं। अब इनमें फर्क क्या है, ऊपर वाले डिफेक्टिव के लिए हो गए, नीचे वाले डिफेक्ट के लिए हो गए, तो अंतर क्या है? अंतर यह है कि एनपी और सी में सैंपल साइज सेम होता है, ऐसे वेरी नहीं करता। जहाँ सैंपल साइज मेरा फिक्स है, डेली के 100 पीस ही बनने हैं, 90 बनने, तो वहाँ एनपी और सी को यूज करता हूँ। यू चार्ट होता है कि डिफेक्ट पर यूनिट, वहां मैं किसको यूज करता हूँ, यू को। और पी में 25% डिफेक्ट, जो मेरा सैंपल साइज है वो वेरी करता है, वो वेरी करता है। तो ये मेरे एट्रीब्यूट के लिए हो जाते हैं। अब आगे समरी देखते हैं कि 7 किसी टूल का न्यूमेरिकल किस तरह है। पैराटो का यूज होता है करंट स्टेटस ऑफ द इशू, स्पेसिफिकेशन बेसिक प्रोसेसिंग परफॉर्म व्हेन द कलेक्टिंग डाया, scatter diagram to identify the relationship between the two things, cause and effect diagram to identify the cause and effect relationship, histogram to see the distribution of the data and process is under control or not control। इससे क्लू भी मिल जाता है कि प्रोसेस का बिहेव कैसा है। चेक शीट टू रिकॉर्ड द डाटा कलेक्शन, control chart to find out the abnormalities, means special causes and identify the current status। ये आपके 7 QC टूल का सेशन यहाँ फिनिश होता है। अगला PDCA का भी मैंने इसमें लेके चला था, लेकिन उसके लिए टाइम की शॉर्टेज की वजह से PDCA हम नहीं करेंगे। प्लान टू चेक बैक। तो यहाँ इस सेशन को हम क्लोज करते हैं। हेलो।
Hello, trainer wing teams. And thank you so much. The way you delivered the sessions, right? What the people, they always talk about that this required at least minimum a day, and you have covered the sessions right in just I could say 1.5 an hour. So obviously it is a especially for the trainer. So first of all, of course, thank you so much, sir. Okay. Friends, at the beginning, right, what actually we have discussed कि हम इस सेशन को एक ऐसा बनाएं जो खासतौर पे आपकी जो डे टू डे रूटीन जॉब में जो चैलेंजेस आते हैं, जो चुनौतियां आप फेस कर, यदि उस चुनौती को हम डायरेक्टली हिट करें और उसकी यदि आप डायरेक्ट सॉल्यूशन यदि आपके पास मिले तो आई थिंक इट कुड बी ग्रेट फॉर यू. I know strongly most of the people they might be aware about these all the 7 QC tools, कौन-कौन से tools होते हैं, बट यदि मैं बात करूं उसकी implication का, हम उसका यूज कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे, और जब हम अप्लाई करने जाते हैं तब किस प्रकार की चुनौतियां हमें सामना करना पड़ता है. तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, please raise your hand whoever are having any concern regarding any challenges while implementing any Arduino tools. So please raise your hand, ask your questions right directly to them, and I strongly believe that definitely you will get prompt solutions from versatile and very experienced trainer Mr. Vivek Bhardwaj. So friends, now dice is open for you. आप अपना सवाल के लिए प्लीज आप रेज करें अपना हाथ. साथ ही साथ यू मे डू वन थिंग, आप चैट पैनल में भी यू मे राइट योर क्वेश्चंस. आप अपने सवाल को चैट पैनल में भी लिख सकते हैं. एंड एक अच्छा तरीका है खासतौर पे हमें अपनी प्रॉब्लम के अनुसार सॉल्यूशन पाने का. ट्रेनिंग में नो डाउट ट्रेनर के पास तो एक बहुत वाइड स्कोप होता है, ये भी कवर करना वो भी करना. शायद किसी को कुछ टूल पता हो, किसी को कुछ टूल पता हो, बट एक सवाल और जवाब के जरिए हमें जो नहीं पता हम उसको उस चीज को हम उस गैप को फिल कर. सो नाउ dice is open for all the participant. So please raise your hand so that we could give an opportunity. I will request my control room to unmute the mic. Meanwhile, one update I'd like to just give you all. This session is being recorded, so hope so tomorrow we will upload this video on our YouTube channel Trainer Wings. I repeat, आज की जो सेशन है उसको हमने रिकॉर्ड किया है. इस रिकॉर्डेड सेशन को हम अपने YouTube चैनल ट्रेनर विंग्स पे आपके लिए अपलोड करेंगे. We are expecting कि we will upload this video on coming Sunday, so that आपको आने वाली for any further references, if you want, of course, you may easily take the reference of the video and you may find the exact solutions whenever, of course, you feel difficulty. एक अमन शर्मा का सवाल आया है, request to share example where stratification can be used. या डियर अमन, स्ट्रेटिफिकेशन जैसा कि डेफिनेशन से क्लियर है, मैं भी उसी स्लाइड पे चल रहा हूँ. हेलो अमन, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर बेसिक प्रिंसिपल ही होता है कि हमें थोड़ा अपना जो हम वर्क कर रहे हैं उससे अलग हटके हमें करना है. अलग हटके किस तरह करना है? सपोज मेरा जो वर्क चल रहा है वो ए ऑपरेटर लगा रहा है, बी ऑपरेटर लग रहा है, सी ऑपरेटर लग रहा है, तो वो ऑपरेटर वाइज, शिफ्ट वाइज, वेदर वाइज, टूल वाइज डाटा को अलग अलग गैदरिंग करना है. जैसे कि अगर आप नीचे वाली स्लाइड में देखेंगे, इसमें ये आइटम्स जो वर्टिकली लिए हुए हैं मैंने फर्स्ट कॉलम के अंदर, वेरिएशन अमंग द वर्कर, वेरिएशन अमंग द वर्क मेथड, वेरिएशन अमंग द मेजरमेंट पब्लिक इंस्पेक्शन.
तो मेरे को अगर वो वन ऑपरेटर का है, उसका डाटा दूसरे से वेरिएट करना है, दोनों को अलग अलग रख के देखना। प्रोसेसिंग मेथड, वर्क मेथड, वर्किंग कंडीशन, उनके बीच का जो वेरिएशन है उनको अलग से डिफाइन करना है और उसको ग्राफिकल फॉर्म में रखना है, उसको ग्राफिकल फॉर्म में रखना है और उसका गैप देखना है कि उसके अंदर क्या वेरिएशन है और उसका रूट कॉज क्या है और हम किस तरह उसको दूर कर सकते हैं। इसी तरह शिफ्ट वाइज, जे वाइज, जहां आपको वेरिएशन ज्यादा की उम्मीद है, पहले उसको डाटा के कलेक्शन से आइडेंटिफाई करेंगे, तब उसका रूट कॉज आप डिफाइन करेंगे। So, Aman, if your query has been resolved, so it's okay. Otherwise, you may directly also chat and talk to the trainer. I hope, Aman, are you okay with the answer? Yes, sir. Thank you so much for the query. Thank you, sir. So thank you so much, Aman. So thank you so much. Thank you so much, Mr. Bhardwaj, of course, for sparing your time today. And I know that, of course, most of the people who have joined today, definitely they will try to implement that all the quality tools which has been, which has been, of course, delivered by you today. So, and later, of course, I request you, team, of course, this is last, I imploring, of course, I'm requesting you all, प्लीज 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 रेज योर क्वेश्चंस एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि ये जो सेशन है वो सेशन मैं नहीं चाहता जो इंडस्ट्री में होता है कि आप आए और पूरा फाउंडेशन, पूरा बेसिक आपको बताया जाए। मैं वो चाहता हूं जो आपसे जो संबंधित है सिर्फ और सिर्फ वो पहलू को टच किया जाए। एंड दैट्स व्हाई ट्रेनर दे ऑलवेज ट्राई टू कस्टमाइज the module, the sessions, right, according to as per your need and desire. So obviously वो तभी संभव है when you will start interacting with the trainer. जब आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी सवाल हो सकता है कई सारे वो जहन में ही रह जाए। सो soon, of course, some session is also coming for the soft skills as well as behavioral. And apart from that, yes, so very soon we are also bringing one session that is think out of the box, creativity and innovation. So in the next week, we are bringing one session on GD&T, especially for technical team, geometric dimension and tolerance. So soon, of course, we are bringing this technical topic for you all. So thank you on the behalf of Trainer Wings. I would like to say thanks to all the participants and thanks to Mr. Bhardwaj once again. Thank you. Jai Hind. Okay, Jai Hind. Welcome.